starting the session. Good afternoon, everyone. There's a small request from my side. I want all of you to please turn on your cameras so that I can see your expressions that you're understanding or not, because it's sign language. Today we're going to act that we don't know how to talk. We'll be using signs. So, I'll introduce myself first. Good afternoon. I am Nanki Singh, and you all know I'm a part of the National Youth Council with all of you. And so we'll be majorly. I want to keep it a very. I don't want to keep it a one-sided communication with you guys because we all are a part of the team. मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने आइडियाज पिच इन करें जो भी हम डिस्कस करेंगे. तो मैं आपको कई क्वेश्चंस पूछती रहूंगी. आई वांट इट टू बी बोथ साइड कम्युनिकेशन. मैं आप लोगों को कई क्वेश्चंस पूछूंगी, आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको आपके क्या व्यूज हैं उस टॉपिक के बारे में. सो विल बी स्टार्टिंग नाउ. आप सबको स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है ना स्क्रीन सबको? ठीक है, ओके. सो बेसिकली टुडे वी गोना टॉक अबाउट साइन लैंग्वेज. क्या होती है, आप लोगों के क्या ओपिनियंस है, व्यूज है साइन लैंग्वेज के बारे में? अच्छा, so I'll start. Sign language is basically a type of language that has been formulated, it has been made to be used for the people who are deaf. क्योंकि वो लोग बोल नहीं सकते तो उनके लिए signs are used so that it makes them easy for them, for us to communicate with them and for them to communicate with us. See, even they are a very pivotal part of our society. They cannot, people who are deaf, we can't exclude them from our society. कि वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारी सोसाइटी में. तो उनके साथ अगर वो बोल नहीं सकते तो उनके साथ कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है? साइन लैंग्वेज के थ्रू. एंड आई थिंक इंडिया में ISL है, इंडियन साइन लैंग्वेज, जो यूज की जाती है. एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट साइन लैंग्वेज. इन इंडिया ISL is used. So although we all have been studying in schools, in colleges, you all also might have come across, you guys are working also, some of you might have come across people who can't speak. So with them how you can communicate is through sign language. एंड इंडिया में अलग तरह की साइन लैंग्वेज है. यूएस में ASL यूज की जाती है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज. एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट साइन लैंग्वेज. So we'll be, as we are a part of Special Olympics Bharat, we are working for Bharat, for India. So we'll be, and in our country, the country which we are living in, India, ISL is used. So we'll be learning the science of Indian Sign Language today. So it's a very sweet, a very nice quote by Oliver Sacks, which says, sign language is equal of speech, lending itself equally to the rigorous and the poetic, to philosophical analysis or to making love. I mean, sign language is equal to speech. जैसे हम बोलते हैं, it is equivalent to signs that you use for communication. It is something that is equivalent to speaking. So basically, what is sign language? I mean, if any one of you knows about what is sign language, do you want to guys answer what is sign language? Achha. So basically, sign language is a type of language that is used to convey a speech, and it is used to convey a meaning of something instead of speaking. So if we do this means, this means two in sign language, a number. You do this in sign language, this means Indian. It's very easy to remember. हमारे यहाँ तिलक लगाते हैं तो इंडियन को ऐसे कन्वे किया जाता है साइन लैंग्वेज में. Between your eyebrows you put a this. So it is used to convey meaning of certain words. You can't speak it. You convey it through your hand movements,
through your facial expressions. So this I want to tell you all that facial expressions, जो आपके expressions हैं वो बहुत important है साइन लैंग्वेज में. अगर आप कुछ हैप्पीनेस का कन्वे कर रहे हैं, कुछ खुशी का कन्वे कर रहे हैं, तो आपका जो एक्सप्रेशन है फेशियल वो खुशी का दिखना चाहिए और आप साथ में अपना साइन करो जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं. और इफ कुछ बहुत टेंशन वाली या कुछ सीरियस सिचुएशन, आप कुछ सीरियस कन्वे करना चाह रहे हैं, कुछ सीरियस साइन करना चाह रहे हैं, योर फेशियल एक्सप्रेशन शुड गो अकॉर्डिंग टू योर हैंड मूवमेंट. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड, इज दैट योर हैंड मूवमेंट्स एंड योर फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑल्सो योर बॉडी लैंग्वेज शुड गो हैंड in hand. Okay, so it is used basically for people who physically can't speak and who even, you people might have come across people who have members in their family who are deaf, who can't speak. तो उनके साथ उनको निग्लेक्ट करने के अलावा आप थोड़े से कई साइंस सीख सकते हैं ताकि आप उनके साथ डेली लाइफ पे कम्युनिकेशन कर सके. You guys don't have to learn something that's very, even I am not a professional, I have not done any degree in sign language, I am not a professional in that, but before joining Special Olympics Bharat, I was really interested in it, so I learned certain basics of how you can talk. And also I told you that each country has different sign language. We know that every country has different languages. France has French, Germany has German language, इंडिया में हिंदी बोली जाती है. तो आई थिंक हर एक कंट्री में जो लैंग्वेजेस हैं, साइन लैंग्वेजेस हैं, वो भी डिफरेंट हैं. इंडिया में स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट से दे हैव डेवलप्ड, द इंडियन रिसर्च हैज डेवलप्ड इंडियन साइन लैंग्वेज ISL. अमेरिका में अकॉर्डिंग टू देयर culture, their settings, they have developed ASL, American Sign Language. So before anything else, I think we all have to know about our history. Knowing about our history is very important. So I'm going to tell you a bit about the history of sign language also. So I've mentioned it on this, you guys can see the screen. Pedro Ponce de Leon, he was the first one who developed the first manual alphabets. This was based on the simple hand gestures that were used by the monks. Then international sign language, because as the development took place, these people could not be neglected in the society. So international sign was formed, which is formally known as Gestuno. It is used at the international deaf events which are organized worldwide, the global events like Deaf Olympics, and when the meetings of the World Federation of the Deaf are held. So this Gestuno sign language, which is the international sign language, is used. Okay, so now let's talk about our country, India. India में Indian Sign Language ISL is used. So what happened was in 2011 में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उन्होंने अप्रूव किया था कि इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, विच इज नोन एज ISLRTC, उनको हैंड ओवर किया था कि यू हैव टू मेक श्योर दैट इन इंडिया अ प्रॉपर साइन लैंग्वेज इज made so that it can be easily a mode of communication can be easily held with them. So इन्होंने ISLRTC ने एक ऑटोनॉमस सेंटर बना दिया था इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू दिल्ली में, जो बेसिकली साइन लैंग्वेज सब हैंडल करती है. और ये जो है हमारी इंडियन साइन लैंग्वेज, ऑल्दो हमारे स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, वी आर नॉट टॉट साइन लैंग्वेज इन आवर स्कूल्स और in our colleges, but I think it is very important as the upcoming youth and as a responsible citizens of our country, we should be taught sign language, ताकि basics तो आनी चाहिए सबको. तो पर हमें नहीं सिखाया जाता, but जो ISL है, it is used in the deaf community all over India. Okay, so just like we are taught ABCD alphabets in our school, in our nursery standards when we go, so today I'm going to teach you all थोड़ा सा alphabets. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब प्लीज एक बार मेरे साथ ये alphabets, I'll be sharing the screen, they all are on the screen, so we all will be practicing it together. So let's start. Okay, so first A is like this. सब लोग कर रहे हैं?
आरुषि, हाँ, आपको समझ आ रहा है? दीदी ये जो साइन लैंग्वेज है इंग्लिश में, ये जो डेफ बच्चे होते हैं ये मुझे आता है, ABCD ये सारी। अच्छा, आपको आता है? आपको आती है, हमें नहीं आती है। अब हम करने वाले हैं, आप हमारे साथ करो, ठीक है? ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए होगी आप यहाँ से देखिए, ठीक है? आप हमारे साथ करो। फिर आरुषि बाद में नानगी के साथ हमारा टेस्ट ले लेगी, ठीक है? चलो लेट्स सब स्टार्ट करें, चलो। सो दिस इज A, दिस इज B, C तो बहुत इजी है, C, देन इट्स D, फिर है E, then it's F, थोड़ा complicated है, it's like this, okay. Next it's G is easy, we can do this easily. ठीक है, नेक्स्ट इज H देखो थोड़ा टफ है, ऐसे हाथ है और फिर उसके ऊपर से ऐसे, थोड़ा मुझे भी नहीं आ रहा था, वे ऐसे है H। I इज इजी ऐसे। आई थिंक एच में हमें कुछ मोशन नहीं करना है क्योंकि इसमें हाँ उसमें लिखा हुआ है, इसको मूव करना है थोड़ा। अच्छा, थोड़ा ये टफ है H, थोड़ा मुझे भी नहीं समझ आ रहा था H। ओके, I इज ऐसे, मैंने आपको आ रहा है ना समझ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज J इजी है। फिर है K, जी पे भी हमें ऐसे कोई मूवमेंट करना है बिकॉज़ वहां पे भी एरो है। वो ऊपर को लाइक दिस, थंब को। उसके बाद है K आपका ऐसे है। L सिंपल है, जो आजकल हम लूजर करते हैं ऐसे, तो L इधर से। M भी इजी है, सो यू पुट योर these fingers, ये तीन L में, M3 होगा, N2 होगा, M ऐसे है आपका, ठीक है। N में फिर ये वाली निकाल दो, दो रहने दो फिंगर्स। O ऐसे सिंपल। P is like this, Q is you make like this and then you put in a finger here, ठीक है। R है आपका बहुत इजी, ऐसे कीजिए, उसके बाद हुक बनाओ एक and put that hook here like this, ऐसे, हाँ। फिर एस है, जैसे पिंकी प्रॉमिस होता है ना, प्रॉमिस करते हैं फिंगर से, पुट अप डू लाइक दिस, प्रॉमिस करके ऐसे, ऐसे। टी तो सिंपल है आपका, ये रहा टी, ऐसे ही बन गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद U भी ऐसे इजी है हमारा। फिर V हमारा विक्ट्री का हो गया। W में पुट योर इंटरसेक्ट द फिंगर्स लाइक दिस, ऐसे करके। X आपका ऐसे बन गया, ठीक है। वायु आपका ये की करो,
ठीक है, ऐसे रखो, ये आपका हैंड शुड बी फेसिंग द स्क्रीन, ऐसे, और पुट योर दिस फिंगर ओवर हियर, ये वाई हो गया। स्माइल किया ऐसे, ये स्माइल वाला जो है, और फिंगर ऐसे रख दी। उसके बाद Z है, Z इज लाइक दिस एंड यू डू दिस। हो गया। आई होप आप सबको अल्फाबेट्स आ गए हैं। बेसिकली ये अल्फाबेट्स हैं जो ISL के अंदर आते हैं। अब हम नंबर्स करते हैं, ठीक है। तो 0 ऐसे है, नंबर्स बहुत इजी है। 0 ऐसे है, ठीक है। 1 ऐसे है आपका, 2 ऐसे है, दिस इज योर 3, 4, 5, 6, 7 is a bit complicated. You don't do this. Instead, what you do is you do this. You make a hook out of this finger and you do it like this. ऐसे, ठीक है। ऐसे मुट्ठी बंद करनी है और ये ऐसे ऐसे करके हुक सी बनानी है। अब 8 क्या होगा? 8 विल बी योर 3 फिंगर्स। पहली ये 3, थंब, इंडेक्स एंड दिस 3 फिंगर। उसके बाद 9 होगा आपकी, ये आगे को और थंब फिंगर निकाल दो, ठीक है। और 10 जो हम लोग शुभम कर रहे हैं इस टाइम ना, क्या क्या सबसे खराब शुभम कर रहे हैं इस टाइम। हाँ शुभम, मैं तो देख ही नहीं रही स्क्रीन। तो 9 ही तो है यार ये। भाई उठ रहे साथ में, समझ नहीं आ रहा शुभम को। अच्छा, अब हम सोचते हैं 10 ऐसे होगा, बट नहीं, 10 ऐसे नहीं है। 10 इज योर, एक फिंगर निकालो और इधर से 0। क्या हुआ? अरे द थिंग इज वहां पर एरो लगा हुआ है, तो आई थिंक वो एक ही हाथ से होगा। हाँ, तो आप एक ही हाथ से कर सकते हैं। आई थिंक हमारे लिए ज्यादा इजी ऐसे ही करना है। दिस ऑल्सो इक्विवेलेंट ओनली इफ यू डू दिस। तो आप ऐसे करें या आप ऐसे भी कर सकते हो, पर ऐसे नहीं कर सकते, इसका कुछ और मतलब है, ठीक है। So these are some basic words that you guys can use in your normal communication. तो है हाय कैसे है? देखो, पहले इस साइड राइट, अपने मतलब अपना लेफ्ट हैंड सब उठाई, राइट हैंड उठाओ। उसके बाद आप पहले तो इस इधर को हैंड करो, लेफ्ट अपने राइट को दिस साइड, फिर आप लेफ्ट को करो। हैंड के पहले राइट साइड को जाना है, फिर लेफ्ट साइड को जाना है। हाय, तो हाय इज दिस एंड दिस। हेलो इज आपका सल्यूट, ऐसे मतलब ऐसे, ठीक है। हाय इज डिफरेंट और हेलो डिफरेंट है, ऐसे, ठीक है। और इंडियन को कैसे किया जाता है? ऐसे तिलक लगाना है अपने आईब्रोज के बीच में, सेंटर पार्ट में, ऐसे। ये मतलब कि आप इंडियन हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज नमस्ते। हमें पता ही है नमस्ते हम लोग करते हैं यहाँ घर में सबको, नमस्ते। दिस इज योर नमस्ते। थैंक यू इज लाइक दिस, यू डू योर हैंड डाउन, पुट योर हैंड डाउन लाइक दिस। टाइप ऑफ लाइक हाउ यू डू अदाब इज यू पुट योर हैंड डाउन। अदाब में ऊपर होता है, इधर थैंक यू में नीचे है हैंड, ऐसे। तो हम प्रैक्टिस करते हैं। पहले हाय कैसे है? ऐसे और फिर ऐसे। हेलो इज सल्यूट, this is your namaste, and this is your thank you, and this is your Indian. It's not mentioned on the screen Indian, but this is your Indian. Okay. Welcome कैसे अब करना है? आपने इसको अंदर को लेना है।
what you do your hand like this and you do it inside like this, या chest पे ऐसे अंदर को, ठीक है, ठीक है. अच्छा, सॉरी कैसे है? रिस्ट घुमानी है अपनी अब. हाँ, सॉरी इज यू डू लाइक दिस, यू पुट योर इधर अपने मतलब ऐसे रखो हाथ और इसको ऐसे कर दो, घूम दो, जस्ट सॉरी ऐसे. क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करना है? हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज करना. घुमाना, क्या मतलब रोटेट नहीं करना रिस्ट को, या फिर ऐसे ऐसे करना? नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना, वंस ओनली वन, एक ही बार करना. आप सॉरी एक ही बार बोलेंगे ना, तो कितनी बार सॉरी 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 थोड़ी बोलेंगे, एक ही बार. यू डू इट जस्ट वंस, जस्ट रोटेट इट वंस. एंड एक मिनट, व्हेन यू आर डूइंग हाई टू समवन, ऑब्वियसली देयर शुड बी अ स्माइल ऑन योर फेस. आप खुशी से किसी को हेलो हाय नमस्ते वेलकम करेंगे, पर जब आपने सॉरी कहना है तो आपने हंसते हुए सॉरी, ऐसे हंस के ऐसे नहीं करना. थोड़ा गिव अ सैड एक्सप्रेशन ऑन योर फेस एंड देन डू सॉरी, क्योंकि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं दे आर लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो गिव अ सैड एक्सप्रेशन एंड देन डू सॉरी, ठीक है? ओके, देन इट्स सॉरी. देन you have obviously you do nice and beautiful to someone. If someone's looking nice, beautiful also comes up with this, is you do this ठीक है? फिर अगर आपने किसी को प्लीज कहना है तो प्लीज वो यू हैव टू वेरी पोलाइट एंड वेरी लाइक थोड़ा आराम से एक्सप्रेशन ऑन फेस, एंड आप ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे प्लीज, ठीक है? फिर आपका एक्सक्यूज मी आप ऐसे करेंगे. हमने कहा एक्सक्यूज मी, बात सुनना, एक्सक्यूज मी ऐसे, ठीक है? तो आई होप आपको बेसिक वर्ड्स इज क्लियर. यू नो, हेलो हाय नमस्ते इंडियन, थैंक यू, वेलकम, सॉरी. ओके, सो नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू टीच यू सम मोर बेसिक वर्ड्स जो हैं आपके. सबसे पहले आपका हाँ हु है, ठीक है? हु में क्या है? ये आपकी फिंगर है, यू हैव टू कीप इट नियर योर इधर, ठीक है? एंड यू डू लाइक दिस, पुट योर दिस फिंगर डाउन, ठीक है? इस फिंगर की मूवमेंट, इंडेक्स फिंगर की, ये ऐसे जाएगा जब आप हु कहोगे किसी को, ठीक है? हु है इसका मतलब. ओके, ठीक है? देन इट्स व्हाट. फेशियल एक्सप्रेशन भी होगा, ठीक है? क्या, व्हाट, ठीक है? दोनों हाथ ऐसे कर दिए. उसके बाद इट्स व्हेन इज यू डू दिस एंड देन यू डू दिस एंड देन यू रोटेट दिस ऊपर वाला हिस्सा, योर अप फिंगर इज दिस लाइक दिस, इट्स व्हेन, ठीक है? एंड ऑब्वियसली व्हेन यू से हु, व्हाट एंड व्हेन, you guys don't have to smile. Obviously there has to be a question mark on your face, there has to be some like you are inquisitive about it. आप इनको, ये सब तीनों terms are used when you're inquisitive about something. तो उस टाइम में they should happy face या sad face नहीं बनाना है. You have to be in a थोड़ा dilemma type की what and then it's like who and then it's like when, ठीक है? अच्छा, where है ऐसे, ऐसे की उंगली और ऐसे फिंगर को घुमाना है. where कर रहे हो ना आप सब, ठीक है? वेयर, ये हुआ आपका वेयर. अच्छा, अब व्हेन कैसे है? योर मिडिल फिंगर, यू हैव टू मूव दिस मिडिल फिंगर अ बिट, नॉट आई मीन वी कांट मूव दिस दैट मच. तो इसको ऐसे घुमाना है, ये वाली फिंगर को साइड वाइज थोड़ा सा, जितना भी घूमे मिडिल फिंगर. आई नो ज्यादा नहीं घूमेगी मिडिल फिंगर साइड वेज, पर यू हैव टू मूव इट साइड वेज, मिडिल वाली फिंगर, ठीक है? ओके, ठीक है? वाई था ये. अब विच कैसे है? आपने अपना राइट जो है उसको ऊपर रखना है, लेफ्ट को नीचे रखना है, ठीक है? इनको मूव करना है ऐसे दोनों. In a way, doesn't has to be, it should not be fast. It has to be slow. In a way that you put
when this comes down, this should go up and it should be parallel. ये इधर रुके ये, ठीक है, ये लो ऐसे, विच हो गया यहाँ, ठीक है. अब गुड बाय कैसे, ऐसे, या आपने अपना, you keep your thumb attached with your other 4 fingers and then you do this, fold them inwards, 4 of them, ठीक है. I hope it's clear to all of you ये basics, who, what, when, where, why, which and goodbye. Okay. So next is yes. Yes में क्या करना है आपने बेसिकली ऐसे फोल्ड, अपने मुक्का बनाइए जो है और उसको ऐसे कर दो. yes, इसका मतलब yes कि हाँ yes, ठीक है. Next it's no. So in no what you do is you make a C basically, and then these 2 fingers should touch your thumb. It should be like this. This is no. This was yes. So this is no. Okay. Please is touch here. Touch your chest. के ऊपर थोड़ा is please like this. And then what you do is you rotate your hand like this thoda. Only once, not like 4 or 5 times. You do it like once, like this. Just rotate it. Okay? And then thanks is you do put both your hands on your lips and then you do this bahar. Just like a flying kiss, you do this. दोनों को बाहर. ठीक है? So basically these are the basic words which you all can use. You can communicate with them. Alphabets, numbers, and some basic words that are type of a necessity, I think, which you can use. And so I thank you everyone, and I want if anyone has any kind of a question or anything, कुछ पूछना आप लोगों ने, क्लियर है? आई होप आपको थोड़े से याद, आई होप आपको थोड़े से, यू आर क्लियर विद इट, यू डू यस, और इफ यू नॉट क्लियर यू कैन डू दिस ऑल्सो, आई वोंट फील बैड, यू कैन डू दिस ऑल्सो. थैंक यू. एंड आई होप आप सबको समझ आ गए बेसिक साइंस, और ये आप यूज कर सकते हैं अगर आप किसी डेफ बच्चे के अक्रॉस आए. And you see, you need practice in this. If you've done it once, it's not that you're going to master in it. You have to learn it step by step. I kept those words very basic words and very short because मुझे पता है कि एकदम grasp करना easy नहीं होता ये, क्योंकि हम ऐसे किसी के साथ daily life में communicate ही नहीं करते. हमें आदत है, we thankful to God we can speak. You know, we don't communicate like this with anyone. And I think when you talk with someone in sign language, it's very important that you should be patient. Having a good level of patience is very important, because sometimes you might get frustrated कि मैं तो कर रही हूँ, इसको समझ ही नहीं आ रहा है. But उस time you have to be patient. You have to try and understand their position. And I think whenever you do sign language or when you communicate with them, it has to be with full expressions and with full kind of emotions that you put in your signs. You have to do it from your heart, because I think सबसे important language is language of heart. You know, it's easily understandable. आप लोग you know, you can communicate with anyone. You can communicate with non-living creatures also. If you दिल से करो तो अच्छी तरह हो जाएगा. ठीक है? तो मैं यही कहूंगी कि ये बेसिक्स थे आज जो मैंने आपको सिखाया. आई होप आप सबको समझ आ गए हो. एंड इन द कमिंग फ्यूचर हम तो सब वी आर इन द सेम NYLC टीम, एंड आई होप दैट वी लर्न मोर सच साइंस टुगेदर. एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, एंड आई होप वी गोना मीट अप सून दिस मंथ ओनली. सो थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन. बाय बाय बाय. थैंक यू. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye.